Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Unlock English Success. So we are working on the new English book of first year, and previously I have prepared unit number 1. All the translation, question answers and exercise is available in my video section. You can find it out. And today we are working on the second half of unit number 2, responsibility of the youth in nation building. Yesterday we have completed first 4 paragraph and its translation. So today we are going to do the rest of the unit. So before starting, I would like to request all of you to please subscribe my channel and like my videos, and do share it with all your friends and colleagues. So without any further delay, I'm going to start from the 5th paragraph. Your main occupation should be in fairness to yourself, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourself for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. So actually this unit is about a speech which was delivered by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in 1948 in University of Dhaka. Okay, that is in Bangladesh now. So Quaid-e-Azam was saying some beautiful advices, suggestions to the students, to the youth of the nation, and let's do its translation. Your main occupation should be in fairness to yourself. आपका असल काम या आपका असल पेशा जो है वो अपने साथ इंसाफ करते हुए, in fairness to your parents, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करते हुए, and indeed in fairness to the state, और यकीनी तौर पर अपनी रियासत के साथ इंसाफ करते हुए, टू डिवोट योर अटेंशन सोली टू योर स्टडीज़, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप पूरी तवज्जो जो है वो अपनी पढ़ाई पर जारी रखें, अपनी तालीम पर जारी रखें. आपकी असली तवज्जो अपने साथ इंसाफ करते हुए, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करते हुए और रियासत के साथ इंसाफ करते हुए सिर्फ अपनी तालीम पर होनी चाहिए. इट इज़ ओनली दस दैट यू कैन इक्विप योर सेल्फ फॉर द बैटल ऑफ लाइफ दैट लाइज अहेड यू. सिर्फ इसी सूरत में आप ज़िंदगी के मैदान में कामयाब हो सकते हैं. ओनली दस विल यू बी एन एसेट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ प्राइड टू योर स्टेट. सिर्फ तभी आप ना सिर्फ अपनी रियासत के लिए ताकत का ज़रिया बाइस बन सकते हैं, बल्कि फ़ख्र का बाइस बनेंगे और उसका असासा बनेंगे. इसी सूरत में आप अपनी रियासत के लिए एक ताकत, एक फ़ख्र और एक असासा साबित होंगे. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal amongst the most progressive and strongest nations of the world. और आप सिर्फ तालीम के ज़रिए ही इन अजीम समाजी और मुआशी मसाइल के हल में रियासत की मदद कर सकते हैं और उसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर कौमों की सफ़ में शामिल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ पैराग्राफ नंबर 6. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columns amongst us. Secondly, guard against the weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान साथियों या मेरे नौजवान दोस्तों, आई वुड देयरफॉर लाइक टू टेल यू, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अ फ्यू पॉइंट्स, कुछ अहम नुकात, अबाउट विच यू शुड बी विजिलेंट एंड बी अवेयर, जिनके बारे में आपको आगाह रहना है और होशियार रहना है. फर्स्टली, बी अवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमेंट्स अमंग अस. सबसे पहले तो आप अपने अंदर छुपे हुए गद्दारों को, उनसे होशियार रहें. सेकेंडली, दूसरे नंबर पर, गार्ड अगेंस्ट, उनसे हिफाजत करें रियासत की. एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल, और उन खुद गर्ज लोगों को निकाल बाहर फेंकें. हु ओनली विश टू एक्सप्लॉयट यू, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका इस्तेहसाल करना चाहते हैं.
सो दैट दे में स्विम, ताकि वो खुद फ़ायदा उठा सकें। थर्डली, तीसरे नंबर पर, लर्न टू जज हु आर रियली ट्रू। उन लोगों को जानने की कोशिश करें जो सच्चे हैं, एंड रियली ऑनेस्ट, और ईमानदार हैं, एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, जो रियासत के बेलौस गुलाम हैं या नौकर हैं। हु विश टू सर्व द पीपल विद हार्ट एंड सोल एंड सपोर्ट देम, और ऐसे अफराद की हमायत करें जो दिलो जान से अपनी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, there is another matter that I would like to refer to, my young friends. Hitherto you have been following the rut. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks. There is another matter that I would like to refer to. एक और बात जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। My young friends, मेरे नौजवान साथियों, hitherto you have been following the rut. आप अब तक एक रवायती राह पर चल रहे थे। You get your degrees, आप अपनी डिग्रियाँ हासिल करते हैं, and when you are thrown out of this university in thousands, और जब हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, all that you think and hanker for is government service. तो सिर्फ़ और सिर्फ आप क्या सोचते हैं या क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। As your Vice Chancellor has rightly stated, जैसे कि आपके वाइस चांसलर ने भी बिल्कुल ठीक फरमाया है, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. जैसे कि आपके वाइस चांसलर ने दुरुस्त कहा कि पुराने तालीमी निज़ाम का मकसद दरअसल अच्छे क्लर्क पैदा करना था। Of course, some of them went higher, अगरचा कुछ अफराद आगे भी बढ़े, and found their level, और उन्होंने अपना दर्जा हासिल किया। But the whole idea was to get well-qualified clerks. लेकिन अमूमी ये ज़हनियत थी कि BA या MA के बाद सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करना ही कामयाबी है और एक ज़बरदस्त क्लर्क्स पैदा करना है। Civil service was mainly staffed by the British, and the Indian elements was introduced later on, and it went up progressively well. The whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. If he got it, he thought he had reached his height. I know, and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial service who are employed by well-to-do people. Now I want you to get out of that rut and that mentality, as now we are in free Pakistan. Civil service was mainly staffed by the British. सिविल सर्विस में ज़्यादातर बरतानवी अफराद को शामिल किया जाता था, एंड द इंडियन एलिमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन, और बाद में हिंदुस्तानी अंसर को भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल किया गया, एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली, और ये आहिस्ता आहिस्ता होता गया। वेल, द होल प्रिंसिपल वाज टू क्रिएट अ मेंटेलिटी। असल मकसद ये था कि ख़ास किस्म की जहनीत पैदा की जाए, आ साइकोलॉजी, एक नफ्सियात पैदा की जाए, एंड अ स्टेट ऑफ माइंड, और एक तर्ज फ़िक्र पैदा किया जाए, दैट एन एवरेज मैन, एक आम शख्स, व्हेन ही पास इज़ BA और MA, जब वो अपना BA और MA पास कर ले, वॉज टू लुक फॉर सम जॉब इन गवर्नमेंट, तो वो सरकारी नौकरी ही हासिल करे। इफ़ ही गॉट इट, अगर वो हासिल कर लेता है, ही थॉट ही हैड रीच्ड हिज हाइट, तो वो समझता है कि उसने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आई नो, मैं जानता हूँ, एंड यू ऑल नो, और आप सब भी जानते हैं, व्हाट हैज़ बीन रियली द रिज़ल्ट ऑफ दिस, कि इन सब का क्या नतीजा निकलता है। आवर एक्सपीरियंस हैज़ शोन, हमारे तजर्बा से ये बात ज़ाहिर है, दैट एन MA अर्न्स लेस दैन ए टैक्सी ड्राइवर, एक MA डिग्री रखने वाला शख्स एक टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमाता है, एंड मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर लिविंग इन अ मोर मिजरेबल मैनर देन मैनी मीनियल सर्विस हु आर एम्प्लॉयड बाय द वेल टू डू पीपल, और ज़्यादातर
नाम नहाद सरकारी मुलाजमीन की ज़िंदगी इन नौकरों से भी ज़्यादा बदतर है जो खुशहाल लोगों के यहाँ काम करते हैं. नाउ आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रट एंड दैट मैंटेलिटी. मैं चाहता हूँ कि अब आप उस पुरानी सोच और जहनीत से निकल आएँ. एज़ नाउ वी आर इन फ्री पाकिस्तान, क्योंकि अब हम एक आज़ाद पाकिस्तान के अंदर रहते हैं. पैराग्राफ नंबर 8. गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड्स, इम्पॉसिबल. But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. हुकूमत हज़ारों लोगों को मुलाजमत नहीं दे सकती, ये नामुमकिन है. But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. और इस गवर्नमेंट सरकारी नौकरी हासिल करने के चक्कर में बहुत सारे लोग मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं. गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टन नंबर. हुकूमत सिर्फ महदूद अफराद के लोगों को ही ले सकती है. एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स. और बाकी लोग मायूस होकर एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड और मायूस होकर आर ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहते हैं टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय पर्सन्स हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ड्राइंग, कि उन लोगों के हाथों इस्तेमाल होते हैं जो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambitions to other channels and other avenues and fields that are open to you. There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law, etc., which provides so many opportunities now. Now I want that you must divert your mind. अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सोच को बदलें, your attention अपनी तवज्जो को तब्दील करें, your aims अपने मकासद and ambitions और अपने अज़ाइम को बदलें, to other channels दूसरे रास्तों की तरफ, and other avenues और दूसरे शोबों की तरफ, and fields that are open to you उन रास्तों की तरफ जो आपके लिए खुले हैं. There is no shame in doing manual work and labor. हाथ से मेहनत करने और मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं. There is an immense scope in technical education, for we want technical qualified people very badly. फ़नी तालीम में बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं क्योंकि हमें फ़नी तौर पर माहिर अफराद की सख्त ज़रूरत है. You can learn banking, commerce, trade, law, etc. आप बैंकिंग, तिजारत, कारोबार और कानून वगैरह सीख सकते हैं, which provides so many opportunities now, जो आजकल बेशुमार मौक़े फ़राहम कर सकते हैं. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening, and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields open to you. Think of them and divert your attention to them. And believe me, you will there benefit yourself more than by merely going for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions. You will be far more happy and far more prosperous, with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourself but also your state. Already you find that new industries are being started. पहले ही से बहुत सारे आप जानते हैं कि सनतें शुरू हो रही हैं. न्यू बैंक्स, नए बैंक, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज़, नई इंश्योरेंस कंपनियां, न्यू कॉमर्स फर्म्स और नई तजारती फर्में बन रही हैं. एंड दे विल ग्रो एज़ यू गो ऑन, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी. नाउ दीज आर एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स ओपन टू यू. ये शोबे और रास्ते आपके लिए खुले हैं. थिंक ऑफ दैम एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू दैम. इनके बारे में सोचें, इन्हें देखें और अपनी तवज्जो इनकी तरफ मबजूल कराएं. एंड बिलीव मी, और मेरे पे यकीन रखें, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्फ मोर दैन बाई मेयरली गोइंग इन फॉर गवर्नमेंट सर्विस. और यकीन करें कि आपको वहाँ सिर्फ सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने से ज़्यादा बेहतर मौक़े मिल सकेंगे. एंड रिमेनिंग देयर इन वट आई विल शुड से अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप, वर्किंग देयर फ्राम मॉर्निंग टिल इवनिंग. और सुबह शाम सरकारी मुलाजमत इख्तियार करके क्लर्की के चक्कर में पड़े रहने से, इन मोस्ट डिंजी एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशंस और गैर आरामदा तंग जगहों पर रहने से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको साबित हो सकते हैं. You will be far more happy and far more prosper with far more opportunities to rise.
और आप अगर तिजारत और सनत की तरफ आएंगे तो आप कहीं ज़्यादा खुशहाल होंगे, ज़्यादा तरक्की के मौक़े पाएंगे, और यू ना सिर्फ आप अपने आप की मदद करेंगे बल्कि अपनी रियासत की भी मदद करेंगे। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आई नो अ यंग मैन हु वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस, मैं एक नौजवान को जानता था जो कि सरकारी मुलाजिम है। 4 years ago, 4 साल पहले, ही वेंट इनटू अ बैंकिंग कॉरपोरेशन ऑन 200 रुपीज़, कि वो सिर्फ 200 रुपये लेकर बैंकिंग कॉरपोरेशन की तरफ गया, बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग के मज़ामीन पढ़े थे। एंड टुडे, और अब, ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फर्म्स, वो उनकी एक फर्म का मैनेजर है। एंड ड्राइंग 1500 रुपीज़ इन मंथ इन जस्ट 4 years, और सिर्फ इन 4 सालों के अंदर अब वो 1500 रुपये माहाना कमा रहा है। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव, ये वो मौक़े हैं जो आपने हासिल करने हैं। एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू नाउ टू थिंक इन दीज टर्म्स, और मैं आप पर ज़ोर देता हूँ कि इन सिमतों के बारे में सोचें। So students, this was the unit number 2 translation of second half. Okay, so I hope you have understand all the paragraphs, you have learned the translation. If you want to write it down, you can also keep it with you and prepare it well. So I wish you best of luck for your upcoming studies and opening of new ways. Inshallah, I will prepare a video of question answers and exercise in the coming days. Till then, Allah Hafiz, and before leaving, I want to request all of you to please subscribe my channel and share it and like it. Thank you so much. Allah Hafiz.